Hello and welcome back to our new video class, High Class 4. So as in our previous video class we completed our literature topic, yes, and as in our previous grammar video class we seen the what is exactly mean by the state of being verbs. Okay, so now this is the time to move on towards our next part of the verbs, that is nothing but the helping verb. Okay, so what is mean by helping verb? Helping verbs are verbs that help the main verb in the sentence. Okay, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हमारा जो मेन वर्ब होता है सेंटेंस में उसको क्या करता है? हेल्प करता है. ओके, सो दे आर प्लेस्ड फ्रॉम बिफोर द मेन वर्ब and a helping verb will not make sense by itself, but when combined with the main verb it improves the meaning of the sentence by stating the action or the time of the action in an accurate manner. So what is meaning of these lines? These lines are meant to say that the helping verb is the verb which helps to the main verb of the sentence, but individually helping verb is not enough here, but when this helping verb mixed with the main verb then it makes the enhancement of the meaning of the sentence. मतलब helping verb क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है, इसीलिए उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब खुद जब होकर मेन वर्ब में कंबाइन हो जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग इम्प्रूव हो जाता है यहाँ पे. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसेस लुक्स एट द फ्रॉग. फॉर तो यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक्शन वर्ब है लुक्स. ओके, लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, द प्रिंसेस इज़ लुकिंग एट द फ्रॉग. ओके, तो यहाँ पे जो लुकिंग एक्शन वर्ब है उसके साथ यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है इज़. क्या यूज़ किया है? इज़. तो इस करने से ये क्या हो गया? इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग इम्प्रूव हो गया. तो सेंटेंस ए ठीक है या बी ठीक है? यस, सेंटेंस बी इज़ लुकिंग. Yes, very nice. Yes, so it's very nice. So B sentence gives a more specific description of the verb looking. तो जो looking ये जो verb है हमारा, जो हमारा main verb है उसको क्या कर रहा है? helping verb is क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है कि वो और ज़्यादा मीनिंगफुल दिखे. ओके, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जो एम, इज़, आर, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये क्या है? ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स है. ये क्या करते हैं? ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं कि सेंटेंस को और ज़्यादा मीनिंगफुल किस तरीके से बनाया जाए. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग अ जूसी रेड एप्पल. तो ईटिंग क्या है यहाँ पे? ईटिंग यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है. क्या है? मेन वर्ब है. और एम क्या है? एम है हमारा हेल्पिंग वर्ब. ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है? यू आर राइडिंग अ बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे. ओके, तो यहाँ पे राइडिंग क्या है? राइडिंग इज द मेन वर्ब, एंड आर इज व्हाट? आर इज द हेल्पिंग वर्ब हियर. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी इज गोइंग टू हर आंट्स place next week. So here the information is about going is enhances with the help of is. So going is what? Going is the main verb. Yes, and is what? Is the helping verb. Okay, now in the next sentence, Rohan, you can buckle your shoes yourself, you are old enough. So as you can see, buckle is what? Buckle is the main verb in this sentence, and can, you can, what can? You can buckle. So can is what? Can is the helping verb here, because
helping verb can improves the meaning of buckling. So this is the helping verb. Okay, now in the above sentences, the verb, what are the verbs there? Am, are, is and can, as well as will. What they are doing here? Will help the main verbs. Yes, they are am, are, is, can and will are helping the main verb. Yes, for example, what are the main example in our sentence there? Eating, riding, going, buckle and sleep. What are these? These are all the our main verbs and they are helping. Who are helping? Helping verbs are helping to the main verb to improve the meaning of our sentence. So eating, riding, then going, buckle and sleep, these are all what? These are the main verbs and they got the help of the helping verb, that is am, is, are, can and yes, will, and they helps the main verb for the improving the meaning of the sentence. So I think you people now understood what is the main verb and what is the हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प करता है. और मेन वर्ब को क्यों हेल्प करता है? क्योंकि जो सेंटेंस का मीनिंग है उसे वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. ओके, तो एम, आर, इज, कैन, विल, ये जो हमारे पिछले सेंटेंसेस में क्या थे? हेल्पिंग वर्ब्स थे. और यहाँ पे उन्हीं सेंटेंसेस में हमारे मेन वर्ब्स कौन से थे? ईटिंग, राइडिंग, गोइंग, बकल एंड स्लीप. दिस आर द मेन वर्ब्स. ओके, सो नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिस्ट देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की. हेल्पिंग वर्ब्स be, when be we can use for am, are, is, was, were, been. Yes, so then again have, has, had, do, does, did, can, could, may, might, will, would, shall, should and must. These are all the helping verbs. ये सब क्या है? helping verbs है. कौन से helping verbs है? yes, बी, उसके बाद यस एम, इज़, आर. बी में कौन से वर्ब्स और आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स? एम, इज़, आर, वॉज, वेर. ओके, उसके बाद में हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शाल, शुड एंड मस्ट. ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है. इन हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट आपको क्या करना है? आपके नोटबुक में लिख कर निकालना है. ओके, तो ये आपका क्लास वर्क है. आपको इसे आपके नोटबुक में लिख कर निकालना है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है. ओके ओके, एंड देन दिस इज़ योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. क्या है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5? ये है आपका होमवर्क. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज़, आर, वॉज, हैव, हैज़. ओके, तो इनके साथ आपको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिलअप करना है जहाँ पर भी सुटेबल है वो. उसके बाद में क्या करना है? अंडरलाइन करना है मेन वर्ब को. किससे? रेड कलर से अंडरलाइन करना है मेन वर्ब को. और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को आपको ब्लू कलर से अंडरलाइन करना है. तो ये हो गया आपका होमवर्क. आपको क्या करना है? इसे कंप्लीट करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. अब हम क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं सब चीज़ें एक बार फिर से. तो हमने क्या क्या देखा? हमने वर्ब्स देखे. यस, वर्ब्स के कितने पार्ट्स देखे हमने माय डियर स्टूडेंट्स? हमने देखे 3 पार्ट्स. कौन से 3 पार्ट्स देखे हमने? वी सीन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स मीन्स what someone or something is doing. Yes, that is called action verbs. Then we seen state of being verbs. State of being verbs, SBV. We seen that. What is mean by state of being verb? They are express situations that exist. Yes, then they do not perform actions. State of being verbs, they do not perform any type of actions and link the subject to a verb, that are called as state of being verbs. And then the third type of verb is nothing but the helping verb. Now yet we seen that the helping verb. Yes,
So what is meant by helping verb? Helping verb is helping to the main verb for making the sentence meaningful. So this is all about the verbs. I think you people understood what are the verbs. So there are three types of verbs: action verbs, state of being verbs, helping verbs. Okay, now we have to go towards our subject, verb and object part. Okay, so as we know that in every sentence should comprise subject plus verb plus object. Okay, so this is the formula of sentence. Okay, so sentence always having these three components. Neither we didn't have subject plus verb plus object, no, we don't have that. Okay, means subject or verb compulsorily sentence में होंगे. In the sentence there are compulsorily subject and verbs. Means many times there were not objects, but as we know that subject, verb and object are the important components of the sentence. Now we have to learn. What we have to learn? A sentence must contain a सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कंपल्सरीली कंटेंट्स होते हैं, कंप्राइज होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज रीडिंग अ बुक. ओके, सो इन दिस सेंटेंस a girl is what? A girl is the subject. What is this? A girl is a subject. And then a book is what? A book is nothing but the particularly what? You have to tell me. Yes, definitely means what she is doing. What is she is doing? That is nothing but that particular. Okay, then Bella eats an ice cream. So Bella is what? Bella is the subject. Yes, then the queen wore a diamond tiara. So the queen is what? The queen is the subject here. Okay, now in the above sentences the highlighted words are the subjects. Yes, definitely the girl, a book, Bella, a queen, they are what? They are the subjects. Means exactly we are talking about that. So सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट उन चीज़ों के आंसर्स देता है वो जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए हु एंड व्हाट से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसका आंसर सब्जेक्ट देता है. तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली हमारे सेंटेंस में क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ रीडिंग अ बुक. ओके, सो हु इज़ रीडिंग अ बुक? द गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक. सो द गर्ल क्या है? द गर्ल है हमारा सब्जेक्ट. उसके बाद में व्हाट गर्ल इज रीडिंग? गर्ल इज रीडिंग अ बुक. यस, गर्ल क्या रीड कर रही है? गर्ल अ बुक रीड कर रही है. सो अ बुक भी क्या है? सब्जेक्ट है. एक सेंटेंस में मिनिममली एक सब्जेक्ट हो सकता है या फिर एक से दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते. ओके, देन बेला ईट्स एन आइसक्रीम. हु ईट्स एन आइसक्रीम? बेला ईट्स एन आइसक्रीम. देन हु वोर अ डायमंड टियारा? द क्वीन वोर अ डायमंड टियारा. तो यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? हु एंड व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है सब्जेक्ट. ओके, सो हु इज़ रीडिंग अ बुक? जैसे कि अभी मैंने कहा, द गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक. हु ईट्स एन आइसक्रीम? बेला ईट्स एन आइसक्रीम. Who wore a diamond tiara? The queen. Yes, the queen wore a diamond tiara. Yes. Then अब आपको क्या करना है? एक बार सेंटेंस को रीड करना है. किस तरीके से? The girl is reading a book. The girl is reading what? Yes, the girl is reading a book. Then Bella eats an ice cream. देन बेला ईट वॉट? येस. सो यहाँ पे आइसक्रीम भी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. येस, बेला ईट्स एन आइसक्रीम. देन अगेन हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है? द क्वीन वोर अ डायमंड टियारा. तो क्वीन ने क्या पहना है? द क्वीन वोर वॉट? येस, अ क्वीन
wore a diamond tiara. So a diamond tiara is also what? This is also a subject. Yes. So आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो who क्वेश्चन का आंसर देता है और what क्वेश्चन का आंसर देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट. क्या कहेंगे? सब्जेक्ट. ओके. नाउ द हाईलाइटेड वर्ड्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो क्या है? सेंटेंस के ऑब्जेक्ट है. कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ऑब्जेक्ट्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हु आफ्टर अ वर्ब. जो वर्ब के बाद में जो क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो व्हाट या फिर हु से जो स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे आपके? वो आपके ऑब्जेक्ट होंगे. क्या होंगे आपके सेंटेंस के? वो ऑब्जेक्ट होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे फिर से देखेंगे, जैसे कि हमने देखा हमारे पिछले सेंटेंस में कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि वर्ब्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या करते हैं आपके? हु या फिर व्हाट क्वेश्चन जो बिफोर अ वर्ब स्टार्ट होते हैं, बिफोर अ वर्ब जो स्टार्ट होते हैं वो क्या होंगे आपके? वो आपके सब्जेक्ट होंगे. और आफ्टर अ वर्ब जो स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे? आपके ऑब्जेक्ट होंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स. सो बिफोर अ वर्ब मीन्स रीडिंग क्या है? वर्ब है. उसके बाद में ईट्स क्या है? वर्ब है. उसके बाद में वोर क्या है? वर्ब है. लेकिन रीडिंग, ईट्स और वोर के पहले जो स्टार्ट हुआ है वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से हैं? द गर्ल, बेला, द क्वीन. ओके, ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट हो गए. उसके बाद में अब हमारे ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? ऑब्जेक्ट वो होंगे जो हमारे एक्शन वर्ब्स या फिर वर्ब्स है उनके बाद में जो हु और व्हाट क्वेश्चन के आंसर देंगे वो होंगे हमारे ऑब्जेक्ट. क्या होंगे? ऑब्जेक्ट. लेकिन कब? जब हमारा जो वर्ब है उसके बाद जो स्टेटमेंट होगा और उसमें से हमें हु या फिर व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. सो द गर्ल रीड्स व्हाट? अ बुक. यस. सो अ बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. उसके बाद में व्हाट? बेला ईट्स एन आइसक्रीम. सो आइसक्रीम, एन आइसक्रीम क्या हो गया? एन आइसक्रीम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. उसके बाद में द क्वीन वोर व्हाट? द क्वीन वोर अ डायमंड टियारा. सो अ डायमंड टियारा इज व्हाट? अ डायमंड टियारा इज ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? अ गर्ल. वर्ब क्या है? इज रीडिंग. और ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक. उसके बाद में सेकेंड सेंटेंस में बेला ईट्स एन आइसक्रीम. सो बेला क्या हुआ? सब्जेक्ट. ईट्स क्या हुआ? वर्ब. और एन आइसक्रीम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट in our third sentence the queen wore a diamond tiara. In this sentence what is the subject? The queen. What's the verb? Wore. And what's the object? A diamond tiara. So you have to keep in mind that what is exactly the subject, how we have to identify? Before the verb the answer if we got from who or what, that is nothing but the subject. Okay. And what is mean by object? How we have to identify from the particular sentence? After the verb. Keep in mind that after the verb if we got the answer about who or what, okay, who or what, then that is nothing but the ऑब्जेक्ट. अगर हमारे एक्शन वर्ब के बाद अगर हमें हु या फिर व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. और एक्शन वर्ब के पहले जो भी हमारे हु एंड व्हाट क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट. ओके, कीप इन माइंड. सो डू यू नो दैट वी कैन ऑल्सो हैव सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? डेफिनेटली अवर सेंटेंस ऑल्सो हैव विदाउट एन ऑब्जेक्ट, because sentence without an object will not answer the question what or who. So you have to keep in mind that if there is nothing, any type of object in the sentence, then there will no question about what and who. Okay, so we have to read the following three sentences. The man is singing loudly. The children are sleepy.
grandfather cooks every day. Okay, so in this sentence, singing loudly. So singing loudly. Who is singing loudly? The subject is the man. Yes, the man is what? The subject in the sentence. Then who are sleepy? Yes, who are sleepy? Or who are sleepy? The children. So the children is what? The children is the subject. Yes. Then in the next sentence, grandfather cooks every day. In this sentence, who cooks every day? Who cooks every day? Grandfather. So grandfather is what? Subject. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट क्या था? द मैन. सेकेंड सेंटेंस में द चिल्ड्रन. थर्ड सेंटेंस में ग्रैंडफादर. ओके, अब हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वेश्चन पूछते हैं हम पहले. द मैन इज सिंगिंग व्हाट? तो यहाँ पे वो क्या सिंग कर रहा है? हमें पता ही नहीं है क्या सिंग कर रहा है. द मैन इज सिंगिंग व्हाट? नो आंसर, सो नो ऑब्जेक्ट इज देयर. देन नेक्स्ट सेंटेंस में द चिल्ड्रन आर स्लीपी. सो यहाँ पे हम पूछेंगे क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर व्हाट? चिल्ड्रन क्या है? सो चिल्ड्रन क्या है? कुछ भी नहीं है. सो आंसर इज नथिंग. सो नो ऑब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस. देन थर्ड सेंटेंस क्या है? ग्रैंडफादर कुक्स एवरी डे. सो क्वेश्चन पूछिए व्हाट से. व्हाट से क्वेश्चन पूछिए, देखिए ऑब्जेक्ट मिलता है क्या? ग्रैंडफादर कुक्स व्हाट? ग्रैंडफादर क्या कुक कर रहे हैं? डोंट नो. सो नो ऑब्जेक्ट इन द थर्ड सेंटेंस. ओके, सो व्हाट एंड हु से हमें क्वेश्चन पूछना होता है जो कि हमारे वर्ब के बाद आता है, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा. और वर्ब के पहले हम अगर हु एंड व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हु सिंग्स लाउडली? द मैन सिंग्स लाउडली. तो द मैन क्या था? सब्जेक्ट मिल गया हमें. हु आर स्लीपी? द चिल्ड्रन आर स्लीपी. सो द चिल्ड्रन इज सब्जेक्ट. देन हु कुक्स एवरी डे? ग्रैंडफादर कुक्स एवरी डे. तो ग्रैंडफादर हमारा सब्जेक्ट बन गया था, लेकिन हमारे तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारे सेंटेंस को एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ. द मैन इज़ सिंगिंग लाउडली, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था. तो इसमें हमारा द मैन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. और वर्ब क्या हुआ? इज़ सिंगिंग लाउडली. सिंगिंग लाउडली, यस, ये क्या है? हमारे वर्ब से दोनों भी. यस. और तो इसमें हमारे सब्जेक्ट में हमारे सेंटेंस में कोई वर्ब था क्या? था. सिंगिंग लाउडली वर्ब था, लेकिन ऑब्जेक्ट था क्या? नहीं. तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे. ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा? द चिल्ड्रन आर स्लीपी. आवर सेकेंड सेंटेंस वॉज देयर, द चिल्ड्रन आर स्लीपी. सो व्हाट्स द सब्जेक्ट? हु आर स्लीपी? द चिल्ड्रन. सो द चिल्ड्रन इज व्हाट? द चिल्ड्रन इज द subject. Yes, and the verb is what? Are sleepy were the subject. Yes, but no object in that second sentence also. Then third sentence was that where? Yes, grandfather cooks every day. So who cooks every day? Grandfather cooks every day. So grandfather is what? Grandfather is the subject, but the verb is what? Cooks every day. But they what cooks every day? We didn't got the answer, so don't have in this sentence the object. Okay, so object is none in this sentence also. So there are certain other type of that particular sentences are there who didn't have any type of particular object. Okay, so it doesn't needed that in every sentence we need the object, because the subject and the verbs are important in the sentence each and every time. If there is nothing object, then didn't mind any type of that. Okay, so now your sixth question is what? This is your homework, you have to complete it. That what's the question here? Look at the images and read the sentences. क्या करना है आपको? images को देखना है और read करना है sentences को, और उसके बाद में क्या करना है? मार्क एस फॉर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के लिए एस मार्क करना है एंड ऑब्जेक्ट के लिए ओ मार्क करना है बॉक्सेस के अंदर. ओके, और उसके बाद में मार्क करना है क्रॉस. क्यों क्रॉस करना है? क्योंकि इफ़ द सेंटेंस डज नॉट हैव द ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है? बॉक्स के अंदर क्रॉस मार्क करना है. तो आपके लिए यहाँ पे एक सेंटेंस करके बताया है उन्होंने कि किस तरीके से करना है. तो उसी तरीके से आपको अदर सेंटेंसेस भी, जैसे पहले आपको बताए हैं कि द मैन सिंगिंग लाउडली, तो व्हाट और हु क्वेश्चन का आंसर अगर
वर्ब के बाद मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब के पहले मिलता है व्हाट और वू का आंसर तो वो सब्जेक्ट होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल रोहन मेक्स एरोप्लेन्स. सो हु मेक्स एरोप्लेन्स? रोहन. सो रोहन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया. यस. सो रोहन मेक्स व्हाट? रोहन मेक्स एरोप्लेन. सो एरोप्लेन क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया. यस. सो इस तरीके से आपको क्या करना है, अदर ये बाकी के 4 सेंटेंसेस आपको करना है. ये है आपका होमवर्क. ओके डियर स्टूडेंट्स, so in this way we completed our verb topic also. In our next video class we have to go towards our adverbs part. Okay dear students, so take care, good luck, bye bye, see you in the next video class, and complete your homework within the time and send it to me on the WhatsApp group.